कमियां होने ना 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 मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा 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 मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे यीशु नासरी दा बेटा हाँ मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे शेर यीशु नासरी दा बेटा मैं यहूदा दे यीशु नासरी दा बेटा मैं राजियां दे राजे 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 यीशु नासरी दा बेटा हो जिदा भले कमाल जिदा उचाए जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल हो जिदा भले कमाल जिदा उचाए जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल मैं बादशाह दे बादशाह यीशु नासरी दा बेटा 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 मैं राजियां दे राजे 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 यीशु नासरी दा बेटा आपकी भरपूर तालियों में खुदा के अजीम खादम जिन्होंने जवानी की जिंदगी में खुदावंद के खेत में बड़े ही ईमान और जाफिशानी और वफादारी से काम कर रहे हैं उन दसो बंदा इंज दा खलोता है जिहदे लई तुहां ताड़ियां थोड़ियां मार दे खुदावंद आप सबको बरकत दे कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम जी।
تو کون کون تیار ہے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو سنیں؟ اپنے ہاتھوں کو لہرائیں ذرا روح القدس کو ویلکم کریں ہم، اور زوردار تالیاں کلام کے لیے۔ عبادت کے اوپر ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ سیولائز ہوئے نا، شریعت ملی نا، تو پہلے حکم کے اندر لکھا گیا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ خدا چاہتا تو پہلے سے لے کر 10ویں تک سارے کے سارے حکم اپنی تعریف کے لیے لکھ دیتا ہے کہ پہلے دن بھی عبادت کرنی تھے، 10واں حکم یہی ہے کہ تو عبادت کرنی ہے۔ تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ لیکن خدا نے اس بات کو بے حد ضروری جانا اور یہ کہا کہ چوتھا حکم میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں اور تو دیکھ اور جا کر لوگوں کو بتا دے کہ چوتھے تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا۔ سو خدا کا قانون یہ نہ سمجھے کہ اگر باپ اور ماں حیات ہے تو قانون زندہ ہے، اگر باپ اور ماں اس دنیا سے رلت کر گئے ہیں تو قانون بھی کلوز ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں اس چشمے کو دیکھ کر آیا ہوں جہاں موسیٰ نے عصا مارا اور پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، لوگوں نے پانی پیا۔ اب سنیں، موسیٰ نے تو عصا مار دیا اور اس وقت لوگوں نے پانی پی لیا، پیچھے جتنے لوگ آئے وہ تو سارے غرق ہو گئے پانی کے اندر۔ آپ سب جانتے، میں اس لیے ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ بھائی جن کے لیے پانی بہایا گیا ہے اور وہ لوگ تو سفر کر کے آگے نکل گئے ہیں وعدے کی سرزمین کے اندر، تو چاہیے تو یہ تھا نا پانی باندھی ہو جاتا، کیڑا کسی نے پینا ہے۔ تو سنیے، آج بھی وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ ہاللیلویہ! اس لیے اس کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم میموریل سروس کے اوپر ہیں، لیکن باپ کی اور ماں کی عزت جیتے جی بھی اتنی ہے اور باپ کی اور ماں کی عزت اس دنیا سے جب وہ رلت کر جاتے ہیں تب بھی اتنی ہے۔ میں ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں بھائی شکیل کو، اس کے سارے گھرانہ کو، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خدا کے کلام سے سیکھتے اس کو پورا کرتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہوں بھی کسی نے ملی ہے نا، وہ کہندہ پوچھئے بھائی کی حال ہے، تو کہندہ بڑا خدا دا میں نے ڈارا، میں ڈاردا کہ صرف خدا کو ڈاردا ہے۔ یا میرا بیٹا پھر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے، ایک بار کہی جائے جو میرا پاپا بہت سخت تھا، میں اپنے پاپا سے بہت ڈرتا ہوں، تے پاپا اگر کہ بیٹا ایلا مہمان آیا چینی لے کے آ، تے کبھی پاپا میرے کو ٹائم نہیں، تے کو ڈر ہے گا، تے ایسی کہنے خدا کو بہت ڈرتے ہیں، ہم بھی بہت ڈرتے ہیں، تے جیڑیاں گلنا خدا کہندہ ایسی کہنے ایسی کرنی ہے، تو یہ کوئی ڈر ہے؟ یہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ سنیے، اگر آج ہم نے یہاں عبادت کا انعقاد کیا ہے تو بھائی ہم جلال تو رب ہی ہوا کو دے رہے ہیں نا، نام تو رب ہی ہوا کا ہی لے رہے ہیں نا۔ سو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی انسان کی شکل بگڑی ہے، وہ بدیوں کی طرف گیا ہے، وہ گناہوں کی طرف گیا ہے، تو خدا اوریڈ ہوا ہے۔ روزوں کے ہم ایام سے گزرے ہیں، روزوں کے ایام یہی سکھاتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی کیا پائے جی۔ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم مرے نہ۔ سنیں، پیدائش پہلے 2 باب جب آپ ریڈ کرتے ہیں تو جب کائنات کو بنا دیا گیا، آدم کو بنا دیا گیا، تو پہلے 2 باپوں میں خدا نے لکھا ہی نہیں ہے کہ لے آدم تو بن گیا ہے اور ٹھیک 70 سال بعد تو مر جائے گا۔ کلام پیدائش 2 باب کا مطالعہ کریں۔ خدا چاہتا ہی نہیں کہ ہم مرے، خدا چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے اوپر یہ فزیکل موت بھی آ جائے جو بیماری کی شکل میں، حادثے کی شکل میں، یا کسی نہ کسی ایسے ایکسیڈنٹ کی شکل میں آتی ہے۔ خدا چاہتا ہی نہیں ہے۔ خدا اس بات کو جب دیکھتا ہے، آدم کو بناتا ہے، تو وہ آدم کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہتا لے آدم 50 سال بعد تو فنش
साल बाद तू फिनिश है। खुदा इस बात को नहीं कहता, ना खुदा का ये इरादा है। खुदा ने तो उसे बना दिया, उसे दिखा दिया ये सारा कुछ ही तेरा है। इसके बाद जानवरों के पास उसे ले गए और उसे बता दिया कि भाई तूने नाम रखने हैं, और आज तक जो उसने नाम रखे आज तक कायम है। अब ये बात इब्लीस को पसंद नहीं आ रही कि इंसान जीता रहे। इब्लीस को ये अच्छी नहीं लग रही कि इंसान जीता रहे, ये खुदा ने क्या फैसला कर दिया है। सो वो फौरी से हवा के पास जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो बाग का फल खा, तेरी आंखें खुल जाएगी और तू जीती रहेगी, तू कभी ना मरेगी। हालांकि इसके ऑपोजिट है ये सारा, इसके मुतबादिल है ये सारा कुछ। अब सुने, जब ये गुनाह हुआ, इब्लीस की चाल कामयाब हुई, तो खुदा को ये कानून बनाना पड़ गया। इससे पहले ये कानून नहीं था। खुदा नहीं चाहता था कि इंसान मरे, खुदा चाहता था इंसान मेरे साथ ही रहे। खुदा नहीं चाहता था इंसान मौत का मजा चखे। पैदाइश उसके 3 बाब और उसकी 19 आयत कसम में लिखा है, जब ये कानून बना तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शक्ल भी बिगड़ती गई। सुने इस बात को, पैदाइश 3 बाब और 19 आयत कसम में लिखा हुआ है, तो अपने मुंह के पसीना की रोटी खाएगा। अब तुम अपने मुंह के पसीना की रोटी खाएगा। पहले तू बाग से तोड़ तोड़ कर खाता था, लेकिन अब कानून बदल रहा है, अब तू मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए। अब जब तक कि तू जमीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है। इसलिए कि तू पहले तो शायद ना जानता हो कि जमीन से निकला है, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूं कि तू जमीन से निकला है। इसलिए कि तू जमीन से निकला है क्योंकि तू खाक है। और भाई तू खाक है, और खाक में ही फिर लौट जाएगा। इब्लीस कामयाब हो गया। उसने कहा वाह भाई, मेरी चाल तो चली गई है, मेरा तो काम पूरा हो गया है। और इंसान के ऊपर मौत जो है वो मंडलाने लग पड़ी। अब शरीयत मिली, लोग सिविलाइज हो गए। जब भी कोई मरता, क्योंकि ये एक सजा के तौर पर जानी जाती है, ये जो मौत है ये उस वक्त के बाद सजा के तौर पर इंट्रोड्यूस होती। सजा के तौर पर लोग इसे जानते कि पहले इंसान के मरने का तस्वर नहीं था, लेकिन अब जब खुदा ने इन्हें सजा दी है तब मौत का अमल शुरू हो गया है। जो कोई भी मरता और भाई कोई उसके पास ना जाता, इसको सजा मिली है। ये इसलिए मर गया, इसे सजा मिली है। कोई भी उसके पास ना जाता। सालों साल जंगलों के अंदर लाशें पड़ी रहती, सालों साल वीरानों के अंदर लाशें पड़ी रहती। अभी भी आसार मिलते उनके। मैं मिस्र के अंदर था, लोग कहते हैं हम जब अपने मुर्दे दफनाते हैं तो भाई हम उनके जो ज्वेलरी है, उनकी दौलत है, वो भी साथ ही दफना देते हैं। पारसी लोग आज भी अपने मुर्दों को जंगल के अंदर छोड़ आते हैं ताकि वो चरिंद परिंद का जो है वो खुराक बन जाए। अब जब भी कोई मरता, लोग समझते उसको सजा मिली है। सालों साल लाशें जो है वो वीरानों में पड़ी रहती गिनती। और उसके जब 19 बाब के अंदर जाते हैं तो ये बात कलाम के अंदर लिखी कि भाई कोई बंदा लाश के पास ना जाए, कोई बंदा जब कोई मरता उसके पास ना जाए। गिनती 19 बाब उसकी 11 आयत कसम है कि अगर कोई बंदा किसी लाश के पास चला गया, किसी मुर्दे को उसने छू लिया, तो भाई वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। अब साहब लगाए, कौन इतनी जुर्रत करता कि लाश के पास जाता? कौन इतनी जुर्रत करता कि वो जाके मुर्दे को, जैसे अब हम कहते हैं नहीं नहीं तेरी जगह तो मैं मरना से है, कौन उस वक्त कोई नहीं करता। वो तो दूर दूर हटना शुरू हो जाते, क्योंकि ये बात शरीयत के अंदर लिखी। गिनती 19 बाब के अंदर उसकी 11 आयत कसम है कि जो कोई लाश को छुएगा भाई वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और फिर कलाम सिखाता है कि अगर कोई बंदा डेरे के अंदर मर जाता है तो डेरे के अंदर जो जो चीजें पड़ी हुई हैं, चारपाई पड़ी हुई है, और भाई बर्तन पड़े हुए हैं, पानी वाला घड़ा पड़ा हुआ है, वो सारी की सारी नापाक होगी। तो साहब लगाए, मैं तो समझता हूं कोई अंदर ही नहीं जाता होगा, कोई डेरे के अंदर भी नहीं एंटर होता होगा, क्योंकि लोगों के माइंड में एक बात चली गई कि ये सजा मिल गई है, ये जो काम हुआ है ये सजा के तौर पर हुआ है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जब भी इंसान की सूरत बिगड़ी है, जब भी इंसान के काम बिगड़े हैं,
जब भी इंसान खुदा के कवानीन के ऑपोजिट चला है तो खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल करके लोगों को दुरुस्त किया। हालेलुया। बुक ऑफ वाज मेरे साथ निकालिए। खुदा ने जब इस कलाम को सीधा किया तो आज हम देखेंगे लोगों के माइंड से वो बातें निकल गई। 7 बाब और उसकी पहली 2 आयतें का इमसाल से आगे आपको मिलेगा। जिनके पास खुदा का कलाम है सुरूर निकाले, ज़बूर के आगे इमसाल है, उसके बाद बुक ऑफ वाज है। नेक नामी बेशबहा अतर से बेहतर है। उसकी सूरत बदलने लगी है। सुनिए, जो लोग लाशों को नहीं छूते थे, जो लोग लाशों के पास नहीं आते थे, सुने उसकी सूरत बदलने लगी है। और कलाम सिखाता है नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। हालेलुया। लोगों ने कहा यार असी कितने सारी जिंदगी काट दी है, असी लाशा के कोल भी नहीं जाते, उतो लोगों ने बुरा भला कहते थे। लेकिन उसने जब कलाम किया उसने कहा भाई सुनो, नेक नामी बेशबहा इतर से क्या है बेहतर है। मेरे यीशु के पास एक औरत आई और शमौन फरीसी उसकी ज़ियाफत कर रहा है, उसके लिए खाने तैयार कर रहा है। लेकिन वो जब औरत मेरे यीशु के पास आई उसने अपना कीमती इतर उसके सर में भी अंडेल दिया, पाँव में भी अंडेल दिया, आंसुओं से पाँव धोए, बालों से खुशक किए। अब शमौन जो फरीसी है वो इस बात को सोच रहा है अगर ये नबी होता केड़े बंदे की दावत कर देती है, कितना पैसा लगा दिया। ओ भाई अगर ये नबी होता तो जानता जो औरत इसके पास बैठी है वो किस किस्म की है, तो कभी भी उसको बैठने ना देता। सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी बेगम पिछले हफ्ते उस मुल्क से होकर आई है। वो उस मुल्क के 300 दिनार पाकिस्तान के अंदर 75,000 बनते हैं। लेकिन सुनिए, अगर वो 75,000 संभाल कर रखती कि मैं बुढ़ापे में खाऊंगी इससे, तो क्या उसके गुनाह माफ हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। 75,000 उसे हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकते थे। इसीलिए तो उसने नेक काम करना शुरू कर दिया। वो 300 दिनार का अतर लाकर मेरे आका के सर में डाल दिया, उसके पाँव में डेल दिया, आंसुओं से उसके पाँव धो दिए, बालों से कुछ किए। तो मेरे आका ने कहा जा, तेरे ये 300 दिनार खर्चने पर, तेरी इस नेक नामी पर मैं कहता हूं तेरे गुनाह माफ हुए, जा अब गुनाह न करना। हालेलुया। तो इसीलिए बुक ऑफ वाज 7 बाब में आया कि नेक नामी बेशबहा इतर से अब रख ले 25,000 घर, 35,000 घर रख ले। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ओ भाई घर में पैसे होने चाहिए, मुश्किल वक्त आता है काम आएंगे। और मैं कहता हूँ यीशु घर में रख ले, मुश्किल वक्त ही नहीं आएगा। हालेलुया। तो जब यीशु आपके घर में होगा तो मुश्किल वक्त नहीं आएगा। अब कलाम सिखाता है कि नेक नामी बेशबहा इतर। तो इसलिए आज हम खुशी मनाते हैं कि हमने इस इबादत में मेरे यीशु को जलाल दिया। हालेलुया। तो इसलिए मैं एंड में बहुत शुक्रगुजार हूँ अरफान अख्तर लड्डू साहब का, इसी तरह यहाँ के मुकामी खादम पास्टर नदीम साहब का, बड़ी अच्छी वर्शिप की है पादरी इकबाल साहब ने, और भाई राशिद ने बड़ा अच्छा, अरशद ने बहुत अच्छा तबला बजाया। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये सारा गुलदस्ता इसी तरह सजा है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।